15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने 200 साल की ब्रिटिश गुलामी से आजादी हासिल की। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया और ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी। आज 2025 में हम 79वीं बार इस आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक छुट्टी नहीं, ये उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी जान दी। ये दिन हमें हमारी एकता, विविधता और लोकतंत्र की ताकत की याद दिलाता है। इस बार की थीम है नया भारत और नेशन फर्स्ट, जो भारत के विकास, तकनीक और वैश्विक नेतृत्व को दर्शाती है। और इस साल की सबसे खास बात यह है कि लाल किले के समारोह में ऑपरेशन सिंदूर को खास तवज्जो दी जा रही है। तो आखिर यह ऑपरेशन सिंदूर क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। 6 से 7 मई की रात को भारतीय सेनाओं ने इस सैन्य अभियान को अंजाम दिया, जिसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक नीति का प्रतीक माना जा रहा है। यह ऑपरेशन पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था और इसमें भारतीय वायुसेना ने 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट और 1 एयरक्राफ्ट को मार गिराया, जिसके बाद पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। इस अभियान का लोगो, जिसे 2 भारतीय सैनिकों ने डिजाइन किया, अब स्वतंत्रता दिवस के निमंत्रण पत्रों पर छपा है। ये लोगो भारत की संप्रभुता और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का प्रतीक है। साथ ही इस बार निमंत्रण पत्रों पर चिनाब ब्रिज की तस्वीर भी है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और सामरिक ताकत को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए कितना सक्षम और दृढ़ है। 29th April, of course, was the time when we met the Prime Minister for the first time, and thereafter, next day, of course, why I'm telling you this, because it's important that how a small name, Op Sindoor, connects the whole nation. And I was telling director also that when he briefed me on this, he said, okay, we'll have this name Op Sindoor. And I thought it is Op Sindhu. Sindhu is basically Indus River. So I said, excellent, sir. Indus Water Treaty has just been frozen by you. He said, no, it is Op Sindoor. And just see, this one name has connected the whole nation together. And today people are saying Sindhu to Sindhu, everything we have taken care of. But that is something which galvanized the whole nation as such. And the soldiers per se, because when I went on ground and I told them that, look, any sister, mother, daughter, whenever she applies the vermilion or the Sindoor, she will always remember the soldier. And I think that was the connect. And I think that was the connect which they brought the whole nation together for one cause. And that is the reason I think the whole nation was saying, why have you stopped? I think that's the question which was being asked. But of course, that has been amply answered by. So the strategic clarity was in dime. That is diplomatic, information, military and economic. And that's why you see that the IWT was frozen, then High Commission strength was reduced, the defense personnel were moved out, persona non grata they were declared, and visas were revoked. Because when you go for such kind of offensives, what happens, you need to always look at what the other side is thinking and how this chess is going to get played. So what we did, we created a red team. So this time what we did differently, as far as Uri, you are aware that it was 2016, it was a shallow thrust and it was launch pad we were looking at. It is basically to convey a message. As for Balakot in 2019, we were looking at penetrating through J&K, going across to training camps which are in Pakistan, and again a kind of giving a punishment. But this time I think that is Pahalgam 25, it was wide and deep where we hit the heartland. This was the first time we hit the heartland, and of course our target was the nursery and the masters. And like I told you, and this has never been done, and even Pakistan was not expecting that the heartland will be hit. And that's what came as a shocker to them. But were we prepared for it? Yes, we were prepared for it to absorb the blowback which will come up. So finally we chose 5 targets in Jammu and Kashmir and 4 targets in Punjab, and out of which 2 were with the Air Force, because the kind of ammunition which was required was much more. And at such a long range, if you have to send it, then the options are either with the Army, Navy, Air Force, long-range weapons, or with the Air Force. So we decided to go with the Air Force, and it helped us because thereafter all the kind of, if I can say that the rebounds which were taking place or the blowbacks which were taking place, but what is important, it was a new normal. It was a new normal where our forces were always prepared for a conventional operations.
So though we were trying last 1 year that what is gray zone and what is multi-domain operations, but people were still not ready for it. But this is the time that our ground forces were actually playing chess. How many were going forward? How many were staying back? How many were moving somewhere else? So this kind of a chess move was there. So in this chessboard of 64, something was visible, something was not visible. And something which was not visible, maybe other countries may be helping out to kind of make them visible for the adversary. हर साल लाल किला स्वतंत्रता दिवस का केंद्र होता है और 2025 में ये और भी भव्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार उन्होंने नागरिकों से उनके विचार मांगे हैं जो माई गवर्नमेंट और नमो ऐप पर शेयर किए गए हैं। 150 mm लाइट फील्ड गन से 52 सेकंड में 21 राउंड फायर किए जाएंगे जो ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल हुई थी। 50 सफाई कर्मचारी जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत चुना गया और पंचायत प्रतिनिधि लाल किले पर मेहमान होंगे। ये दिखाता है कि भारत हर वर्ग के योगदान को सम्मान देता है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर तिरंगे और ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के साथ फूलों की वर्षा करेंगे। देश भर में 142 स्थानों पर नृत्य, गीत और नाटक होंगे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के लिए अंडर व्हीकल सर्विलांस सिस्टम, UVSS और नए सीटिंग व्यवस्था जैसे इंतजाम किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। देश भर में स्कूल, कॉलेज और समुदाय ध्वज वंदन, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सरकार की इस मुहिम के तहत लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं। 15 अगस्त को आसमान तिरंगे रंग की पतंगों से भर जाता है जो आज़ादी की उड़ान का प्रतीक है। इस बार माई गवर्नमेंट ने कई प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर निबंध और न्यू इंडिया पर पेंटिंग जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। तो दोस्तों, 19वां स्वतंत्रता दिवस न सिर्फ आज़ादी का जश्न है बल्कि ये भारत की ताकत, एकता और भविष्य की उम्मीदों का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर और चिनाब ब्रिज जैसे कदम दिखाते हैं कि हमारा देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। आप इस स्वतंत्रता दिवस को कैसे मना रहे हैं? क्या आप हर घर तिरंगा में हिस्सा लेंगे? कमेंट में हमें बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए इस 15 अगस्त को तिरंगे की शान और ऑपरेशन सिंदूर की वीरता का जश्न मनाएं। जय हिंद। 15 अगस्त को लेके हमारे बहुत ही पुख्ता और मल्टीपल टाइप्स ऑफ सुरक्षा इंतजाम हमने यहाँ पर करे हैं और उसके अंदर हमने पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान रखते हुए यहाँ पे अरेंजमेंट लगाया है और कई तरह की टीम्स यहाँ पे हैं। पुलिस की है, पैरामिलिट्री की है और भी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हैं यहाँ पे। उसके अलावा मेडिकल इमरजेंसीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे मेडिकल की टीम्स हैं, कैट्स है, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस, उनके फर्स्ट एड पोस्ट भी है। उसके अलावा फायर सर्विस की टीम्स भी है, यहाँ पे होमगार्ड्स भी हैं। तो बहुत ही व्यापक स्तर के ऊपर ये अरेंजमेंट लगा है जिसके अंदर अराउंड 10,000 सुरक्षा कर्मी भी लगेंगे। उसके अलावा जो हमारे मैन पावर तो है ही है, मैन पावर की और रीच बढ़ाने के लिए यहाँ पे हमने CCTV कैमराज से भी सर्वेलेंस कर रहे हैं पूरे इलाके के अंदर और लाल किले के आसपास और अंदर 800 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं जिससे कि नज़र इसके ऊपर रखी जाएगी हर चीज़ के ऊपर और हमारा कंट्रोल रूम हर क्षण उसमें मॉनिटर करता है और उसको रिस्पॉन्ड करता है।